So even today, when we look at the charts of Nifty, there were two falls at the beginning and more towards the end. In between the timings which I had given around 10:30, 10:45 to 12:31, and a little beyond, in fact, there was some consolidation that took place and even some rise. But it was front ended and back ended in terms of the places, the areas where the fall came. Well, this was more as knee jerk reaction from the Asian markets and also the way people were expecting the US markets to open. There was one parameter which we have realized will have an important bearing on the markets. That's why I keep telling you that when we do our analysis, we take thousands of parameters into consideration. Anyway, there is something more that we realize we would need to consider, which we have been now able to incorporate, and we will be giving you our predictions based on some more parameters. Looking forward to this new week beginning 21st of December. I know there is so much of uncertainty. Many people are bleeding in their portfolios already, and some are thinking that December will be a Santa Claus rally, and as happens globally across the world, and all will be calm in January. No. In fact, if you watch those who have been watching my videos over several months, I've been telling that we do not anticipate a calm nature of the markets going forward from here. The turbulence that I'm expecting, which will be both ways, so it's not going to be one way. In this week also, there will be a few days where it will be one way moment, but on the whole, what the morning session will show and what the afternoon session will be quite different from each other. But the trend which is there will keep on changing between morning and afternoon. Yet there will be, at least I can see, at least 2 days where the trend will be one way. Okay, so this week portends, and it's going to be very interesting, and I would like to give you there I can see two gap down openings, and lot of frustration may build up this week. So don't anticipate it will be a calm week. Another week of turbulence, some clearly negative days, and some gap down opening, but we may translate into a better trend in the afternoon session. So it will keep on moving between these various trends this week. We have incorporated as many new parameters. We have worked around the clock to get you this information. And yes, to get more detailed information, please do support us. Always join Premium Plus, and we would love to have you on board and share more detailed analysis of this whole week. The number to get in touch is 9820861044. तो भाई और बहनों, ये जो ट्रेंड नेगेटिव ट्रेंड इस हफ्ते का दिखाया है, पहले यूएस फेड का जो डिसीजन था, उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स में तेज़ी, फिर नरमी एक फैक्टर है. हमने आपको कहा है कि 10,000 से ज़्यादा हम फैक्टर्स को लेते हैं पूरा प्रेडिक्शन बनाने. तो चलो ठीक है, फेडरल रिज़र्व ने और एक फैक्टर्स डाल दिए हैं, तो वो भी अब इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं प्रेडिक्शंस में. कई लोगों को लगता है कि सांता क्लॉज रैली होगा. नहीं, टर्बुलेंट रहेगा मेरे हिसाब से. सांता क्लॉज रैली नहीं समझिए, टर्बुलेंस बहुत बढ़ जाएगा. अभी ऊपर अप डाउन सुबह का सेशन और आफ्टरनून का सेशन बहुत अलग रहेगा, और कई दिन आपको मिलेंगे जो सीधे गिरावट रहेंगे. मुझे नहीं लगता कि सांता क्लॉज रैली इस वक्त दिखाई देगी इस साल. रहती तो मैं आपको कहता, मैं समझता हूँ कई लोग को निराशा हो रही है. आज भी देखे तो जो पीरियड्स मैंने दिए थे 10:30 के बाद, तो उसमें कंसोलिडेशन काफ़ी हुआ, लेकिन कोई ऐसी मेजर गिरावट दिखाई नहीं गई थी. फिर भी अब हमारा काम है आगे देखना, 21 तारीख से क्या मूवमेंट आती है. अब हमारा फोकस आगे आगे की तरफ मंडे से है. मंडे से क्या कैसे रहेगा, वहाँ पे ध्यान देना है. जो आप लोगों को क्या कर सकते हैं जिससे कोई लाभ हो. तो सेशंस में वॉलेटिलिटी तो रहेगी ही. मेरे हिसाब से आप लोगों को थोड़ा चौकन्ना रहना चाहिए. मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस में डाल रहा हूँ कि सेलिंग मार्केट ओवर वैल्यूड है, लेकिन
ये भी नहीं लगता कि हर दिन और हर मिनट जो है गिरेगा ही नहीं। यहाँ पे कुछ शार्प रिवाइवल्स भी दिखाई देंगे। आज भी दिन के समय कुछ दिखाई दिया गया था, ये आगे भी दिखाई देगा। तो आप लोगों को थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे दिख रहा है, इस वक्त एक सांता क्लॉज रैली मार्केट में दिखाई देना मुश्किल है, नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, ये मेरा खुद का विश्लेषण है। आप हमेशा की तरह खुद का भी विश्लेषण ज़रूर करिए। मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहा है। अब कोई सोचेंगे आप जेनरिक वे में बोल रहे हो, नहीं। जो मेरा समझते हैं वो मान जाएंगे कि मैं कुछ पीरियड्स की बात कर रहा हूँ। कुछ दिन मुझे प्योरली नेगेटिव दिख रहे हैं। और इस हफ्ते में एक बड़ी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑप्शंस का जो मंथली एक्सपिरेशन आ रहा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त कठिन दिन होने वाला है। बहुत कठिन दिन आ रहा है ये। और ये थर्सडे जो आएगा, मंथली ऑप्शंस एक्सपिरेशन, कई लोग मुझे पूछते रहते हैं कैसे रहेगा। इस बार ये बहुत लोग चौकन्ने, अगर आप ध्यान से एफ.एन.ओ नहीं किए ट्रेडिंग तो बहुत बड़ा लॉस होने की संभावना है। तो संभाल संभाल के करना है। ठीक है, तो जो सुबह का सेशन में दिखेगा वो दिन के सेशन में नहीं रहेगा। ऐसे 2 दिन दिख रहे हैं मुझे जो पूरे दिन गिरावट हो सकती है। लेकिन ऑन द होल सुबह आफ्टरनून सेशन में टर्न होते जाएगा। और डाउ S&P नैस्डैक में जो टेक्नोलॉजी शेयर्स की में जो गिरावट दिखाई दी है वो कई दिनों में बरकरार रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस हो गया। कई लोग लिख रहे हैं कि बस हो गया, जो बुरा होना था हो गया। तो ये जो है ये मन में न लेके रखना कि वो सब हो गया। और फिर इसका इम्पैक्ट तो ग्लोबली आता ही है। जब बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स देती हैं इंडियन कंपनीज़ को, अगर उनमें ही बड़ी गिरावटें दिखाई दे रही है तो नेचुरली उनके पास भी इनका जो इफ़ेक्ट है वो यहाँ भी भारत में भी दिखाई देगा। तो ये नहीं समझिएगा कि आईटी कंपनीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। हर जगह डॉलर की मजबूती से बरोबर भारतीय आईटी कंपनीज़ को काफ़ी लाभ हुआ है और उनमें तेज़ी है। लेकिन फिर भी जो विदेशी विदेशी मुद्रा है उसका ज़रूर लाभ हुआ है। लेकिन फिर भी ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो यूएस की आईटी कंपनीज़ के ऊपर काफ़ी बरकरार रहता है। अगर वहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स दिखाई दिए तो भारत में भी दिखाई देंगे। और ना भूलें कि वेल्थ इफ़ेक्ट रहता है। अगर ये मार्केट में और अगर गिरावट का दौर रहा तो वेल्थ इफ़ेक्ट भी आ जाएगा, फिर कंज्यूमर पावर पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो डिटेल एनालिसिस पूरे हफ्ते का तैयार लगभग हो ही गया। और हम आपके सामने कुछ तो आपको मैंने चिन्ह दिखाई दिए, आज दे दिया नक्शा कि कैसे आना है उतार चढ़ाव। और कुछ कुछ तो है पूरे गिरावट के दिन। और सनसनी अगर आपको चाहिए तो पूरा जो है ये जो ऑप्शंस एक्सपिरेशन डे वो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। तो कई कई टाइम से मैं तो कह रहा हूँ कि गिरावट का दौर दिखाई दिया, तो आज ये हफ्ते में कुछ आपको कई दिन दिखाई दिए हैं और ग्लोबली दिखाई दिए हैं, ऐसा नहीं कि भारत में ही है। एनीवे और भी फिर आपको एनालिसिस तो प्रस्तुत किए हैं मैंने और करते रहूँगा। और अच्छा, अगर आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो प्रीमियम प्लस में ज्वाइन करेंगे 9820861044। ध्यान से करिएगा इस हफ्ते में। और एक चीज़, ये बंद करने से पहले मैप माई इंडिया की लिस्टिंग होने वाली है 21 तारीख को। एक यूनिक प्रोडक्ट है जो डिजिटली मैप कर रहा है इंडिया को और ये फिर लाइसेंस कर रहे हैं ऑटो कंपनीज़ को। बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। भाव भी काफ़ी है इसका। लेकिन अगर जो क्या कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम लिया जाए तो ये लिस्टिंग अच्छी होनी तो चाहिए मंगलवार को। तो मेक माई इंडिया एक अच्छी कंपनी है जहाँ लिस्टिंग अच्छी होनी चाहिए। और उसके साथ एक कॉम्पिटिटर है इसका, उसका नाम है जेनेसिस इंटरनेशनल। वो भी लगभग सिमिलर लाइन में है और डिजिटल मैपिंग में काफ़ी उसको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले गए हैं। और अभी भी नीति आयोग जी ने के चेयरमैन ने उनका इनॉग्रेट किया था कुछ एक नया डिजिटल प्रोजेक्ट। भारत को तो ये डिजिटल मैप्स क्रिएट करना वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो ये दोनों कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस नियर टर्म में दे सकती है, मैप माई इंडिया और दूसरा है जेनेसिस इंटरनेशनल। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और आप लोगों के लिए आगे का हफ्ता शुभदायी रहे, इससे मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।